स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में फंक्शन ये जो टॉपिक है अपना अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑपरेशंस ऑन अ फंक्शन। ये अपना फंक्शन टॉपिक का 9th नंबर का लेक्चर है स्टूडेंट्स। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का इसमें वेलकम करता हूं। इसमें लेटेक्स एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ आर। Then various operations on functions are defined as follows. उसमें पहला ऑपरेशन है स्टूडेंट्स सम ऑफ फंक्शन। लेट f is a function from x to y and g is a function from x to y. g is again a function from x to y. Then f plus g. f plus g is a function from x to r. Suppose f is a function from x to r and y is also a function from x to r. Then f plus g is a function from x to r is defined as, this function is defined as f plus g of x is equals to f of x plus g of x for all x belongs to capital X. For x belongs to capital X. Sum of functions कैसे डिफाइन करते स्टूडेंट्स? f plus g of x is equals to f of x plus g of x. इस तरह से सम ऑफ फंक्शंस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। डिफरेंस ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे f इज अ फंक्शन है। लेट f इज अ फंक्शन from x to r. X is a subset of set of real numbers, and y and z, another function z is again x to r. Then f minus z, this function from x to r is defined as, this function is defined as f minus z of x is equals to f of x minus g of x. This is about difference of functions students. Third example देखते हैं product of functions के बारे में। Let f is the function from x to r and g is the function from x to r. Then f into z, the function f into g of x is defined as f into g of x is equals to f of x into g of x. इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम क्वेश्चन फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। Let f from x to r is a function and z from x to r is another function. Be two functions, then x0 is the set of all x which is the member of x such that g of x is equal to 0. Then f upon g is a function x minus x0 to r is defined by f upon g of x is equal to f of x upon g of x for all x belongs to x minus x0. देखिए स्टूडेंट्स, अगला डेफिनेशन जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट f is the function from x to r and k is any scalar. k क्या है स्टूडेंट? any scalar है। then k, the function k into f of x is equals to k into f of x for all x belongs to set of all x. This is about the scalar multiplication of a function. Scalar multiplication of a function के बाद हम देखते हैं definition of a composite function. Now students, आज यहाँ पे हम function chapter के इस सेकंड
पार्ट में जो है कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है कंपोजिट फंक्शन का, देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन। एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन ए टू बी है, एंड जी इज द फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। Therefore, the function f of g of x, it is the function that is defined from a to c. This function is called as composite function. इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए 3 की वैल्यू 6 है और 6 की वैल्यू 12 है, इज अ डबल ऑफ 5 की वैल्यू 10 है और 10 की वैल्यू 20 है, 7 की इमेज 14 और 14 की इमेज 28 है, is a double of. Then there is a one more function from set A to set C, that is f of g of x. 3 का fourth, 3 fours are 12, 5 fours are 20, 7 fours are 28. तो 3 की वैल्यू 12 है, 5 की वैल्यू 20 है, 7 की वैल्यू 28 है। इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। कंपोजिट फंक्शन के बारे में और क्या देखते हैं देखो स्टूडेंट्स। दिस शोज दैट every element of set A is related to one and only element of Z is equal to G of f of x of C. A का every element set C के one and only one element को related होता है। This gives a function from set A to set C is called composite function of set A, composite function of f and g. देखिए स्टूडेंट्स, नोट दैट f of g of x is different from g of f of x. The composite function f of g of x is different from g of f of x. This is about the composite function, composition. इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स। इफ f is a function from a to b, it is 1 1 and on 2. वन on 2 ये 1 1 भी चाहिए, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ a set A is related to unique element of set B, and on 2 means the range equals to codomain. That function is known as onto function. Then the function g from B to A is called inverse function of, it's called inverse function of f. देखिए स्टूडेंट्स, if y equals to f of x, then inverse function is x equals to f inverse of y. Y equal to f of x is a function है स्टूडेंट्स, तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है? x equals to f inverse y. Inverse of f is denoted by f inverse. If the function is not 1 1, अगर ये फंक्शन 1 1 और on 2, अगर ये फंक्शन इसमें से दोनों भी केस नहीं है, तो 1 1 नहीं है या तो on 2 नहीं है, then inverse does not exist. ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स।
दिस इज अबाउट इनवर्स ऑफ फंक्शन। नो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में? अगर कोई एक ही फंक्शन दिया है तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन नहीं होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू और मोर फंक्शंस है तो उसे हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक फंक्शन फॉर एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन है, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस होते हैं तो हम उसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। अब इसमें डोमेन देखिए स्टूडेंट 0, इंफिनिटी है इसका x की वैल्यू, और x की वैल्यू पुट करने के बाद f ऑफ x की जो वैल्यू की रेंज वो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी है। देखिए स्टूडेंट्स अभी f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? इसमें f ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि 2 0 स्क्वायर प्लस 1 1 एंड एनी नंबर टू द पावर 0 वैल्यू 1। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे एफ ऑफ 2 की दो वैल्यू होगी, एक एक्स इज लेस देन 1, यहाँ पे एफ ऑफ 2 नहीं आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी 4। नाउ स्टूडेंट्स एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? 8। इसे कहते हैं हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। नाउ डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज मीन बाय सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? Signum function x is equal to -1 when x is less than 0. Signum function x is equal to 0 when x is equal to 0, and signum function x is equal to 1 when x is greater than 0. x greater than 0 है यहाँ पे तो फंक्शन 1 है, कांस्टेंट फंक्शन, एंड x माइनस 1 के लिए ये फंक्शन लेस देन 1 के लिए x इज लेस देन 1 ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है तो इसलिए -1 है, एंड एट 0 के लिए फंक्शन 0 है। तो इसकी डोमेन क्या है? R है, एंड रेंज क्या है? -1, 0 एंड 1। तीन ही रेंज है इसकी स्टूडेंट्स। एक तो -1 होती है फॉर एक्स इज लेस देन 1 के लिए। एक्स निगेटिव नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू -1 होती है, कांस्टेंट होती है। एक्स इज 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, एंड x ग्रेटर देन 0 मींस x पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 तो x की वैल्यू कांस्टेंट है 1, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर कहां पे होते हैं? 1 2 3 यहाँ पे होते हैं, इसके लिए f ऑफ x की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x 0, एंड x इक्वल टू -1 -2 -3 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू -1 होती है स्टूडेंट्स। इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में देखते हैं। वी कॉल इट एज मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू mod x, ये नोटेशन है मॉड्यूलस फंक्शन का, एंड y इक्वल्स टू -x व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन 0। x नेगेटिव है तो y इक्वल्स टू -x होता है, y equal to x when x is greater than equal to 0. x is equal to 0 is a critical point. It's called a critical point. Where behavior of graph changes. यहाँ पे ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है स्टूडेंट्स। देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन में क्या होता है? जो पॉइंट होता है -2, -2, -1, -1, 0, 1, 2, 2, these are some points। इस मॉड्यूलस फंक्शन में देखिए स्टूडेंट्स इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इसकी जो रेंज है सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, ∞। उसमें और एक फंक्शन देते हैं नंबर 2 y इक्वल्स टू mod x minus a फॉर a ग्रेटर देन 0, a में बी एनी पॉजिटिव नंबर।
तो y इक्वल टू a माइनस एक्स होता है जब x निगेटिव होता है, x इज लेस देन a होता है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन y इक्वल्स टू x माइनस a है। इसका ग्राफ इस तरह से स्टूडेंट्स, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से बिहेवियर चेंज होता है ग्राफ का, उसे a कहते हैं। x इज इक्वल टू a इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हम इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय a square bracket x enclosed in a square bracket, a greatest integer function है, and greatest integer function x is less than or equal to x। ये इक्वल कब होता है? जब x इंटीजर होता है तभी इक्वल होता है, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन द इंटीजर। इक्वलिटी ऑकर्स व्हेन x इज एन इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, x minus 1 is less than greatest integer function x is less than or equal to x। ये greatest integer function जो है वो x minus 1 से बड़ा है और x से छोटा है। greatest integer function x plus n equals to greatest integer function x plus n, n an integer। greatest integer function x plus y is greater than or equal to greatest integer function x plus greatest integer function y। अगर इसकी सम की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर सेपरेटली उसका हम अगर इंटीजर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 बाय n प्लस सो ऑन प्लस x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n इंटू x। स्टूडेंट्स तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स 9.7 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9.7 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 होती है स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 है, दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज द इंटीजर लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर निगेटिव नंबर के बारे में हम देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.2। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1/1.2 है, -1 से छोटा वाला जो -1 से -1 अगर लिया तो ये आएगा -2 स्टूडेंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.9 है, देखो स्टूडेंट्स 5.9 इधर आएगा तो इसका दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हम क्या करते हैं, जो उससे कम वाला इंटीजर जो होता है वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। लेस देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो नंबर लाइन पे उसके लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे अगर हम वो नंबर लोकेट करते हैं तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लेफ्ट साइड में आने वाला जो नंबर है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम नंबर के इंटरवल में डिफाइन करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। देखो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, जो -3 टू -2 के इंटरवल में -3 वैल्यू होती है, -2 टू -1 के इंटरवल में -1 2 वैल्यू होती है, -1 टू 0 के इंटरवल में वैल्यू -1 होती है, 0 टू 1 के इंटरवल में 0 होती है, 1 टू 2 के इंटरवल में 1 होती है, 2 टू 3 के इंटरवल में 2 होती है और 3 टू 4 के इंटरवल में इसकी वैल्यू होती है 3 स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं हम। इसका जो ग्राफ है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x is equal to 2, y is equal to 2, x is equal to 3, y is equal to 2, and x is equal to 3, y is equals to 3। इसी तरह से
x is equal to -1, y is equal to -1, x is equal to -2, y is equal to -1, x is equal to -2, y is equal to -2, x is equal to -3, y is equal to 3। इस तरह से जो फंक्शन का जो ग्राफ है इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इस ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन y is equal to x is known as piecewise defined function and x is equal to x minus greatest integer function x is a piecewise defined function। देखिए स्टूडेंट, let us express this piecewise defined function explicitly। now y explicit and implicit function में फर्क होता है। y equals to f of x is equals to y equals to f of x इसे कहते हैं explicit function, and y equals to 2x plus xy plus x square y। y is a function of x and y, it is known as implicit function। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस y equals to x plus 2 that is minus 2 is less than x is less than minus 1, y equals to x plus 1 is minus 1 is less than or equal to x is less than 0, y equal to x is 0 is less than or equal to x is less than 1, y equal to x minus 1 1 is less than or equal to x is less than 2। इसका जो ग्राफ है कुछ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की तरफ होता है, तो इसे हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये फंक्शंस के टाइप हम फिनिश करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।